To begin with the paper, the name was sales management, not the sales management, but the name of the paper is sales and retail management. Uh, Earlier, when I started the paper, I told you that this paper is introduced from the last year only. Earlier, there were two papers. The one was sales and distribution management, the other was the retail management, two different papers. So, the content of both the papers are merged and one single paper is being formed. So in this paper, you will find the starting two units from the sales and distribution management paper, and the rest of the three units are from the retail management paper. So in totality, you have to discuss the sales and retail management in one single paper. Okay, so सेल्स मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे एंड मैंने आपको बताया था कि सेल्स क्या होता है। मैनेजमेंट की तो बात बाद में ही आप समझ जाएंगे। ऑलरेडी हम बात कर रहे थे सेल्स की, और सेल्स को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम इन दोनों में डिफरेंस समझें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेल्स और सेलिंग में, ठीक है, बिकॉज द पीपल आर कंफ्यूज्ड एंड समहाउ दे कोरिलेट सेलिंग एज सेल्स एंड सेल्स एज सेलिंग। सो a slight difference is there. When we talk about selling is it's everyone's responsibility. When you talk about in any organization, anyone can sell. Any employee who is like a part of the marketing and sales department, he or she is having the ability to sell the product, recommend the product. While means when we are talking about the selling, it's an individual task. When we are talking about the sales, so sales basically talks about the entire department, the efforts of the entire department. It's not the responsibility of one person, right? So when we talk about the organizational sales or product sales or territory sale like that, so it is basically the responsibility of the whole department. सेल्स बेसिकली आर दी रिजल्ट्स, जो हम देखते हैं कि हर साल when the company is interested in knowing that at the end of the year what is the sales of the company in a particular area. So basically sales depicts the results, while selling is an activity that drive sales. ठीक है, तो we basically focus, we have to focus on selling, because when we focus on selling, that automatically drive the sales, right? So selling activity is required to perform or to get the sales done. A sale is a transaction, is one transaction. ठीक है, sale is one transaction, while selling is continuous relationship building and value delivery. When we talk about selling, selling will not end when you pass on the good to the customer. It's a continuous or repetitive kind of activity. It's not only the one time you have sold the product. Every time you have to convince the same customer or the another customer, and you have to do it on recurring basis, right? So selling is a continuous relationship building, while sale is one transaction. And when we see the the report of the company every year at the end of the year, that sales basically is a kind of one transaction, or one kind of data in which you get to know that okay, this year our sales was the itne lakh units or of itne amount of value. So that basically denote the sales. Sales is a broad professional designation, while selling is a skill and a privilege. देखिए सेल्स की जब हम बात करते हैं, तो एज अ मैनेजर, इफ यू आर अपॉइंटेड एज अ सेल्स मैनेजर, so basically that gives you a position, that gives you a designation, right? No matter that whether you know how to get the sales done or not, but you are there, and you are denoted as a sales manager because of the position. While for selling, several skills are required. You may not be able to sell if you don't know the abcd of how to sell the things. ठीक है, तो selling is basically a skill. It's, you will not get the selling because of the position, कि भाई मैंने आपको सेल्समैन बना दिया और आपकी सेल्समैन बनाते ही आप सेलिंग करने लगे. नो, it's not possible, because until and unless you have the requisite skills inside you. So basically it's a privilege, it's a skill, and sales denote the designation, right? So this is basically the distinction between the sales and selling. Now I'm coming to the same thing, sales management, back again.
एज आई टोल्ड के पहले सेल्स और सेलिंग समझ लेते हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, कि एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन making efforts in the direction of getting the sales done, because sales is a very crucial activity. Sales is a very crucial department as a whole, you can say. तो सारी जो एफर्ट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो सेल्स को मैनेज करने के लिए होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें बताई भी हैं कि सेल्स जरूरी नहीं है कि आप कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहे हो। देर आर सो मेनी यू नो so many ways in which the sales is happening and you are getting the sales. मैंने बताया भी था ऑनलाइन सेल्स एक, जैसे आपको कोई फोन खरीदना है तो यू आर, if you are purchasing it online or you are purchasing it, you can purchase it from the franchisee store, or you can purchase it from the retailer. So everywhere the sales are happening. You need to manage all these things. You need to know that from where the things are happening, where the things are being selling. तो ये आपको देखना पड़ता है, ये आपको मैनेज करना पड़ता है। इसी में ये सारी चीजें भी हैं। सेल्स मैनेजमेंट मींस द मैनेजमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग रिसर्च, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आप करते ही हो। जब भी हम सेल्स की बात करते हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट द एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव अ पुश टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, because advertisement give that push to the product and it will help you in generating the sales. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज आ जाएंगी इसमें, जैसे कहीं ना कहीं आप देखते हैं एग्जीबिशंस लगती हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, कैनोपीज लगा के बेचा जाता है। ठीक है, और भी कोई सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स अगर कंपनी कर रही है, सो दैट आल्सो द पार्ट ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। देन मार्केटिंग रिसर्च बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट, the scenario, the situation, when you try to investigate the customer needs, in all these things the marketing research is needed. Physical distribution, it's also a tough task to deliver the product to the right customer at the right time and in the right form, right? So it's a headache for the company, and physical distribution is also the part of sales. Several examples I have already given you, so I am not repeating those examples again. I gave you the example of online companies in which the company is at one place and they are delivering the goods in the entire nation or in the entire world. I gave the example of Amazon on that time. ठीक है, सो दैट बेसिकली प्रोवाइड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कैसे आप तक पहुंच रही है वो चीज, वो सारी चीजें आ जाएंगी, वो भी सेल्स में ही, सेल्स मैनेजमेंट में ही इंक्लूड करते हैं। प्राइसिंग आ जाएगी, बिकॉज प्राइसिंग कहीं ना कहीं सेल्स पे अफेक्ट डालती है। आप किसी चीज की प्राइस कम कर दीजिए, सेल्स बढ़ जाएगी। आप किसी चीज की प्राइस बढ़ा दीजिए, सेल्स घट जाएगी। तो डायरेक्टली इट हैज एन अफेक्ट ऑन सेल्स। तो सेल्स जो बंदे रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर सेल्स, उनसे भी कंपनी डिस्कस करती है, एंड आफ्टर द डिस्कशन विद दोज पीपल हु आर इम्पोर्टेंट इन गेटिंग द सेल्स डन, द प्राइसेस आर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द कंपनी। Then product merchandising. Product merchandising basically बताता है कि merchandising basically means कि what kind of assortment, what kind of varieties you have included in getting the sales. Because कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट में जब आप बेचते हैं तो उसकी कई सारे कलर कॉम्बिनेशंस आपके पास, जैसे मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो विद द सेम मॉडल ऑफ मोबाइल फोन यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। से फॉर एग्जांपल इफ Redmi 9A आप फोन खरीदने जा रहे हैं, तो सेम फोन की अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे किसी में 2GB 32GB होगा, किसी में 4GB 64GB होगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बट वो प्रोडक्ट का नाम वही होगा, उसमें कलर्स अलग होंगे, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू एंड रेड एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो बेसिकली वो सारा प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है कि आप उसको किस तरीके से इंक्लूड करके चलते हो, उसमें कितनी वैरायटीज लेके चलते हो, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट, इसीलिए ही हम कह रहे हैं क्योंकि ये कंपनी को सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत आज की डेट में पड़ रही है, एंड फॉर दैट सेक द कंपनी हैज मेड द डिफरेंट, और यू कैन से द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर हैंडलिंग द सेल्स डन।
और टू मॉनिटर दी सेल्स। ये सारी चीजें वही हैं जो अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये हमने बात करी ली। अब इस पे बात करते हैं सेल्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या कंप्राइज कर रहा है। एज यू कैन सी, create, manage sales systems, processes, and protocols. A very important part of sales management, that firstly you have to create the sales systems. How you will monitor the sales, how you will manage the sales. For that sake, you need to have an ERP or some software or some help of computer and IT peripherals, right? So वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप एक बैंक का उदाहरण देखें, एसबीआई, ठीक है, तो एसबीआई सर्विंग इट्स कस्टमर ऑन नेशनल लेवल, एंड यू कांट बिलीव दैट हाउ मच इट कॉस्ट to purchase the entire server which the SBI is running. ठीक है, it has a worth in करोड़, ठीक है। ऐसी रेलवे का अगर आप देखेंगे तो रेलवे का जो सॉफ्टवेयर होगा इंडियन रेलवेज का, आप क्या सोच रहे हैं कि वो 2-4 लाख रुपए का है? करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर है जो ऐसे मैनेज किया जाता है। ऐसे ही एसबीआई का आप देखते हैं कि कितने उस पर खर्चा किया जाता है, इतना हैवी सॉफ्टवेयर और इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाने का, ठीक है। तो वो आप देख रहे हैं कि किसी भी एंड से आपके पास एसबीआई का, आप अकाउंट होल्डर हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल में एसबीआई का ऐप है, ऐप से आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, उसकी डिटेल बैंक तक पहुंचती है, बैंक आपके अकाउंट में मॉडिफिकेशन करके वो तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट अकाउंट इज अपडेटेड एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन मैसेज दैट this much amount is debited from your account, or if someone has sent you the money so credited in your account. तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली नहीं हो रही हैं, वो बेसिकली सिस्टम बता रहा है। ये आप जो देख रहे हैं ना लिखा हुआ कि हाउ टू मैनेज द सेल सिस्टम्स, दिस इज बेसिकली द सिस्टम व्हिच द कंपनी हैज मेड। तो एसएम comprises of that systems and process how it the things will move, how the things will get done. So entire system is included in the SM. Then there is the support, the sales effort and instill discipline. सेल्स एफर्ट किसके हम सपोर्ट करेंगे? ऑफ द सेल्समैन, ठीक है। तो एंटायर टीम विच इज वर्किंग ऑन द company's part to get the sales done, we have to support the sales effort. I told you that in a company the much weightage is given to the salesman, marketing people, and not any other people, ठीक है, because they know that they are the backbone and when they will work in the market then only the money will come and we will get the salary. पूरे कंपनी के लिए जो काम करने वाले बंदे हैं वो मार्केटिंग और सेल्स के ही है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो उन्हीं में डिसिप्लिन भी लाना है, डिसिप्लिन इन द सेंस के दे हैव टू वर्क सिंसियरली टुवर्ड्स अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज देयर ओन पर्सनल टारगेट्स एंड गोल्स। वो बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। देन डेवलप एंड मैनेज सेल्स स्ट्रेटजीज, अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज सेल्स स्ट्रेटजीज क्या होते हैं ना कि दे नीड टू चेंज, रिवाइव टाइम टू टाइम, बिकॉज what your competitor is doing, what is the condition of the market, you have to jump or adhere accordingly. एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, आपने देखा होगा कभी एक सुबह ठेले पे जो अगर सेब या कोई चीज बेच रहा है, फ्रूट्स भी, तो आप देखते हैं सुबह ठेला जब लगा रहा होता है वो सेब एप्पल का, और आप उसके पास जाके अगर पूछेंगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द एप्पल, ही विल टेल यू दैट 80 रुपीज kg, और आप उससे बार्गेन करोगे तो वो शायद सुबह को नहीं करेगा। लेकिन उसी ठेले के पास जब आप शाम को जाते हो या दोपहर के बाद जाते हो, जब वो आधा ठेला खाली हो चुका होता है उसका, और फिर आप उससे जाके पूछोगे तो बोलेगा बाबूजी 80 रुपए किलो है, आपको 70 लग जाएगा। तो वो देखिए आप दोपहर के बाद से उसका प्राइस रिड्यूस करते हुए चलता है, बिकॉज ही नो कि अगर शाम होते होते वो पूरा ठेला बेचना चाहता है तो ही हैज टू ड्रॉप द प्राइसेस। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, डेवलप एंड मैनेज सेल्स स्ट्रेटेजीज, ये बेसिकली स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, ठीक है। कि कैसे आप सेल्स को करते हुए भी चल रहे हो, कैसे आप प्राइस को भी हैंडल करते चल रहे हो, डिमांड भी देख रहे हो वहां पर, और आपको सारा इन्वेंट्री भी मेंटेन नहीं करनी, आपको सारा स्टॉक भी क्लियर करना है, ये बेसिकली इसी का ही पार्ट है। तो कंपनी भी ऐसे ही काम करती है। स्टिमुलेट एंड मैनेज चेंज, ये इसी का ही ये थोड़ा एडिशन हम समझ सकते हैं कि चेंज इज एवरीवेयर यू विल फाइंड द चेंज,
चेंज से आप बच नहीं सकते, चेंज कहीं भी कहीं पर भी किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ चेंज वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दैट हैज एन अफेक्ट ऑन सेल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो भी आपको मॉनिटर करना है, वो भी आपको देखना है। आपने सेल्समैन बदल दिए, आपकी टीम बदल गई, सेल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्ट की आपने पैकेजिंग बदल दी है, सेल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। आपने प्राइस ऊपर कम या ज्यादा कर दिए हैं, सेल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी तरीका हो, कोई भी चेंज हो, कहीं पर भी हो रहा हो, उससे कहीं ना कहीं आपकी सेल्स पे अफेक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट कंप्राइजेस ऑफ दिस आल्सो। मैनेज सेल्स परफॉर्मेंस बजट टारगेट। देखिए, बजट कंपनी बनाती है कि हमें इस साल सेल्स करने के लिए हमें कितना खर्चा करना है। जैसे हमें एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करना है, सेल्स प्रमोशन पे कितना खर्चा करना है, ठीक है, तो बजट का पार्ट है। ऐसे ही उस बजट को उसी बजट में रहते हुए सारा हमें सेल्स करनी है, तो हमें क्या टारगेट इंडिविजुअली असाइन करने होंगे सेल्समैन्स को। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। आपके पास जो टीम है 20 लोगों की, 50 लोगों की, तो उसी बजट में रहते हुए, ताकि उनकी सैलरी, उनका कमीशन भी निकलता रहे और आप उन टारगेट्स को मीट आउट भी कर पाओ। ठीक है, तो ये भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो दैट्स ऑल्सो कवर्ड इन इट। सस्टेनिंग कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। कमिटमेंट आपका होना चाहिए एज एन एम्प्लॉय, एज अ सेल्समैन, आप कमिटेड हो टूवर्ड्स द कंपनी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी आपसे चाहती है, कमिटमेंट आपका होना चाहिए। जो टारगेट्स आपने आपने एलोकेट किए हैं इंडिविजुअली, वो मीट आउट करें। ठीक है, उसमें कोई फ्रॉड ना हो, दिखा दिया जा रहा है कुछ और, हो कुछ और रहा है, मार्केट भी खराब ना हो, गुडविल भी बनी रहे। ये सब कमिटमेंट होगा तभी पॉसिबल है। वरना आज की डेट में क्या होता है ना कि सेल्समैन भी झूठ बोलकर या गलत बात, गलत आश्वासन देकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को और उनके रिटेलर्स को वो टारगेट तो मीट आउट कर लेते हैं, लेकिन जब वो जॉब छोड़कर चले जाते हैं तो कंपनी रियलाइज करती है कि उनका मार्केट पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनसे गुस्सा, नाराज बैठे हुए हैं क्योंकि उनसे फॉल्स कमिटमेंट कर दिए गए हैं। तो ये भी सारे बेसिकली तभी पॉसिबल है जब आपको एक कमिटेड टीम मिले। डेवलपिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग। देखिए, टाइम टू टाइम एज वी हैव डिस्कस कि चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस चेंज से निपटने के लिए हम नए नए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं ये। ठीक है, तो जब नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी देनी होगी। मीन्स के यू हैव टू डेवलप द न्यू ट्रेनिंग मेथड्स एंड you have to get your sales team updated every time। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं करना है। आपको ट्रेनिंग देनी है, कोचिंग देनी है, और आपको अपडेट रखना है अपने सेल्समैन को, टीम को। सेलेक्टिंग सेल्स टीम मेंबर्स एंड स्टिमुलेटिंग इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, आपको बड़े ही हिसाब से अपने सेल्स टीम के लिए मेंबर्स को चुनना है, सेलेक्ट करना है, उनके अंदर स्किल्स को देखना है। ठीक है, एंड इंडिविजुअल टैलेंट को नर्चर करना है, स्टिमुलेट करना है, ताकि वो आगे बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल्स वो लाके दे, अर्न करके दे। ठीक है, ये एसएम का प्रोसेस है। ठीक है, 5 स्टेप्स प्रोसेस आप सेल्स मैनेजमेंट का समझ सकते हैं। सबसे पहला, डिफाइन वैल्यू प्रपोजिशन। सबसे पहले आप यू नीड टू डिफाइन द वैल्यू। आप किस चीज पे वैल्यू देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, एनी कंपनी विच फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, or in any other company that focuses on getting the prices cheaper. Third company may focus on exploiting the market opportunities. Fourth company may have a value system which focuses on uh, you know uh, best quality, गिविंग बेस्ट क्वालिटी टू द कस्टमर। तो ये क्या है, बेसिकली ये वैल्यू प्रपोजिशंस हैं, ये वैल्यूज हैं अलग अलग, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वैल्यू प्रपोजिशन सेट करने हैं। फिर बात आ रही है आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई टारगेट मार्केट्स। आप देखिए, एक साथ सब मार्केट्स में जंप नहीं कर सकते, सब सेगमेंट्स में जंप नहीं कर सकते। तो कंपनी क्या करती है कि धीरे धीरे अपना मार्केट एक्सपेंड करती है टाइम रहते। ठीक है, तो वही बात यहाँ की जा रही है। पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्वांटिफाई कर लीजिए कि कितने मार्केट्स हैं, टारगेट मार्केट्स हैं जिनमें आपको उतरना है।
और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल जंप इनटू इट। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आप सब तरफ आपने जंप कर दिया, सब तरफ इंट्रोडक्शन कर दिया या मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और फिर आप कुछ उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसको समेट नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बेटर है कि आप सेलेक्टेड ही पहले उसमें आइए और धीरे धीरे टाइम रहते फिर उसको बढ़ाते रहिए और देखते रहिए, चेक करते रहिए। फिर बात आ रही जनरेट एंड मैनेज दी पाइपलाइन। Generate and manage the pipeline. Basically, it means the core people, the core team, वो आपको जनरेट करनी है। ठीक है, वो आपके लिए जो काम करेगी बेसिकली सेल्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और मैनेज दी पाइपलाइन का यहाँ पे भी मतलब जो निकल कर आ रहा है, जो प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, जो कस्टमर्स होंगे जो आने वाले समय में प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, वो आपके लिए एक पाइपलाइन के तौर पर है। एंड उसी में से ही आप कस्टमर्स को कन्विंस करते हुए आगे प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। वो हटनी नहीं चाहिए, वो छूटनी नहीं चाहिए, हर सिंगल कस्टमर को आपको फॉलो अप करना है और साथ में जोड़ के चलना है। ठीक है, फिर बात आ रही है अलाइन दी सेल्स प्रोसेस। ये हम बात कर ही चुके हैं, इसमें भी हमने बात की थी ये मैनेज सिस्टम प्रोसेस प्रोटोकॉल। तो यही बात की जा रही है कि किस तरीके से हम इन्हीं जो कस्टमर्स हैं पाइपलाइन में उनको हम सेल्स प्रोसेस तक लेके जाते हैं। अलाइनमेंट, अलाइन का मतलब है अपने साथ उसको आगे लेके बढ़ाते हैं और फिर सेल्स प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, ये बात की जा रही है। तो फाइनली आ रही है एग्जीक्यूट दी सेल्स प्रोसेस। इसी सेल्स प्रोसेस को हम फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। ये लास्ट में आगे की स्लाइड में हमने सेलिंग प्रोसेस एक डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो उसके भी स्टेप्स इसमें आप इंक्लूड करके चल सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए एसएम के ये 5 स्टेप्स मेन। नेचर की बात करें अगर हम सेल्स मैनेजमेंट का, तो नेचर आप देख सकते हैं गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, एज यू हैव डिफाइंड द गोल फर्स्ट और उसी गोल की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप अपना एक टारगेट लेके चलते हैं कि आपको क्या अचीव करना है विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट रिफर्स टू योर गोल। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम एफर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन नया है, फर्स्ट टाइम उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको एफर्ट करने की जरूरत है। इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट, तो आपको लगातार करते रहना है। ठीक है, और जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक आपको सेलिंग और सेल्स पे फोकस करते रह के चलना होगा। सिस्टमेटिक अप्रोच है, यानी कि आप बेसिकली एक सिस्टम को फॉलो करते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी आप सेल्स कर दोगे, नो। ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग दैट हाउ टू गेट दी सेल्स डन, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसेस, जो हम अभी ये पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको सिस्टमेटिक अप्रोच है। रिलेशनशिप सेलिंग है, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी क्या कर रही है, अल्टीमेटली कंपनी जो है वो रिलेशनशिप भी मेंटेन करके चल रही है, रिलेशनशिप बनाती हुई चल रही है। ठीक है, कस्टमर के साथ में और उनको अपने साथ में जोड़कर चल रही है। तो आप बेसिकली साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कर रहे हो या रिलेशनशिप सेलिंग भी कर रहे हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, सेल्स में बेसिकली हम इंटीग्रेट करके चलते हैं मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस। वो आपने अभी स्टार्टिंग में ही जो डेफिनेशन हमने बात की थी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, वो मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस वो सेल्स मैनेजमेंट में ही कवर हो जा रहे हैं, क्योंकि जब सेल्स की बात की जा रही है तो वो हमें करने ही करने हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ में इंटीग्रेटेड है सेल्स मैनेजमेंट। डिफरेंट सेल्स और जॉब पोजीशन, ये भी नेचर है कि डिफरेंट सेल्स, अभी आपको बताया था मैंने कि अगर आप ऑनलाइन सेल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ऑनलाइन सेल्स के लिए आपको अलग एक डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजमेंट में ही एक अलग से आपको एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी विच विल लुक इनटू दी ऑनलाइन सेल्स ओनली। ठीक है, आपको डिफरेंट जॉब पोजीशन भी क्रिएट करनी होंगी, वहाँ के जो स्किल्स होंगे वो अलग होंगे। देखिए एक एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान ले रहे सीएट या एमआरएफ, तो वो उसके लिए कस्टमर कौन कौन है सोच के चलिए। उसके लिए सबसे पहले देखा जाए तो कस्टमर उसके लिए मारुति सुजुकी कंपनी भी है। ठीक है, क्योंकि मारुति अगर गाड़ियां बना रही है तो उसमें टायर तो एमआरएफ या इन्हीं कंपनियों के लग रहे हैं, तो उसके लिए वो कंपनी भी एक कस्टमर है। लेकिन ऐसी कंपनी और
यू नो एज अ कस्टमर ऐसी कंपनी से डील करने के लिए आपको बहुत ही एलीट, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही इंटेलिजेंट एक पोजीशन पे एक बंदा चाहिए होगा जो कंपनीज के सीईओज के साथ बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कर पाए, उनको सेल्स दे पाए। ठीक है, आप ऐसे ही किसी बंदे को नहीं बैठा सकते उस पोजीशन पे कि वो मारुति सुजुकी के हेड से या सीईओ से बात करेगा और वो एक या दो टायर नहीं खरीद रहे। उनका आपसे जो टर्म्स होंगी, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो राउंड द ईयर होगा, पहली चीज। दूसरा, हर 5 मिनट में 10 मिनट में जितनी गाड़ियां बन रही है सब में टायर लगेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में हजारों टायर आप मारुति को बेच पाएंगे, जबकि एक खाली कस्टमर जुड़ा है मारुति। ऐसे ही अगर आप देखें उसी टायर के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो आपके लिए कस्टमर है। और किसी रिटेलर की शॉप से अगर आप एक टायर परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो वो रिटेलर तक भी जो टायर पहुंचाया जा रहा है वो भी एक कस्टमर के तौर पर है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स, अलग अलग तरीके की सेल्स है और अलग अलग तरीके की जॉब पोजीशन रिक्वायर्ड है। दैट इज बेसिकली द नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इट्स अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब है कि यू विल फाइंड दिस फंक्शन एवरीवेयर, right? Everywhere you will find this function, whether the organization is small or big, whether the company is dealing with any kind of product or service, but such kind of function you will find everywhere all over the world. ठीक है, that's why it is pervasive. ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें सेल्स मैनेजमेंट के, तो आप देख सकते हैं 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सफिशिएंट वॉल्यूम जनरेट करना, सेल्स इतनी मात्रा में करना कि उससे आपको जो लागत है वो निकल जाए उसकी। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स करंट प्रॉफिट, लागत भी निकले और साथ ही साथ वो प्रॉफिट में भी कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड है इंश्योरिंग कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ भी पॉसिबल होनी चाहिए सेल्स के थ्रू ही, क्योंकि अभी अगर आप एक रीजन में सेल कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप दूसरे डोमेन में, दूसरे रीजन में सेल्स करते हो, और इस तरीके से आप धीरे धीरे मार्केट को कैप्चर करते रहते हो और मार्केट बढ़ाते रहते हो, अपना मार्केट शेयर बढ़ाते रहते हो। सो दैट रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ऑब्जेक्टिव है मेन जो सेल्स मैनेजमेंट के। इसके बाद बात आ रही है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न सेलिंग के। आज की डेट में अगर हम देखें जो सेलिंग हो रही है उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या फीचर्स हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है कस्टमर रिटेंशन एंड डिलीशन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूअसली जो कंपनी है वो ये चीज देखते चले कि उसके लिए कौन सा कस्टमर कितनी वर्थ का है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली देखा गया है ऐसा कि 80% जो सेल्स आ रही होती है वो 20% कस्टमर से आ रही होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अमाउंट की टर्म्स में देखें, अगर हम पैसों की टर्म्स में देखें, तो जो बड़े 20% कस्टमर्स हैं, बड़े, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, और वो इतना खरीदते हैं कि वो जितना सामान कंपनी बेचती है उसका 80% खरीदते हैं। तो बेसिकली कंपनी को क्या चाहिए कि वो उन्हीं 20% कस्टमर्स पे पहले फोकस करके चले, क्योंकि वो अगर एफर्ट्स अपने उन 80% पे लगाएगी जो 20% खरीद रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना टाइम वेस्ट करेगी, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करेगी। तो कंटिन्यूअसली कस्टमर उसको रिटेन करके रखना है। किन को रिटेन करके रखना है? उन 20% कस्टमर्स को जो 80% सेल्स दे रहे हैं। और डिलीट किसे करना है? उन 80% कस्टमर्स को जो 20% सेल्स दे रहे हैं। ठीक है, उनको कंटिन्यूअसली डिलीट करना है। डिलीट का मतलब ये नहीं है कि उनको माल देना बंद करना है, उनको सामान देना बंद करना है, उन पे एफर्ट्स लगाना बंद करना है। ठीक है, उन पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने। फिर आप देखिए सेकंड है डेटाबेस एंड नॉलेज मैनेजमेंट। डेटाबेस को आपको हैंडल करना है। ठीक है, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट किसी कंपनी के लिए डेटाबेस ही है, जो आप किस तरीके से अपने डेटा को हैंडल करते हो, किस तरीके से उसको स्टोर करते हो, कैसे यूज करते हो। ठीक है, डेटा कितना एक्यूरेट है, आज की डेट में कंपनी बेसिकली यही काम कर रही है। और इतना आपको मालूम ही है, डिजिटल वाला पेपर भी आपने पढ़ा ही है, पढ़ रहे हैं कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डेटा है। ठीक है,
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस पर हम बात कर ही चुके हैं कि कंपनी साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग कर रही है, अपने कस्टमर को रिटेन करके रख रही है, उनके सेटिस्फेक्शन का ध्यान रख रही है, ठीक है। तो वो अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग भी इस समय कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मॉडर्न सेलिंग। मार्केटिंग द प्रोडक्ट, आज की डेट में देखिए सेलिंग और मार्केटिंग इक्वल वेटेज हो चुकी है, क्योंकि मार्केटिंग इटसेल्फ कंट्रीब्यूट टू सेल्स, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप जो मार्केटिंग है उसके साथ, अभी हमने बात भी की इंटीग्रेटेड है सेल्स मैनेजमेंट, तो वही बात हो रही है कि मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न सेलिंग। सेलिंग करते करते आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी है राउंड द क्लॉक। देन कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिस्टम सेलिंग। देखिए आपको बेसिकली कस्टमर को बेचना तो है प्रोडक्ट, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच देते हैं जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो यू हैव टू एडहियर टू द प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम द कस्टमर इज फेसिंग, एंड देन यू हैव टू सजेस्ट हिम और हर द सॉल्यूशन। साथ ही साथ आप पूरा सिस्टम बेच रहे हैं। बेसिकली एग्जाम्पल एक देके बताया गया था कि किसी कंपनी को अगर आप कोई डोर लॉक्स बेच रहे हो, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा, कंपनी लाइक फोर्ड, कि कैसे वो पहले से बेहतर है,